वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ रियल हीरोज़। आज मेरे साथ है आकाश। आकाश को मैं 25 साल से ज़्यादा से जानता हूँ और आकाश उन शख्सियत में से है जो पढ़ाई में कभी भी अच्छा नहीं कर पाया। 12th में उसके 57% मार्क्स आए थे। उसके बाद वो किसी लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज में गया। वहाँ से उसने 8,000 रुपये महीने से अपनी प्रोफेशनल जर्नी की शुरुआत करी। 8,000 से वो 3,000 रुपये महीने पे गया। क्यों? क्योंकि उसको लर्निंग चाहिए थी और उसने ऐसी जॉब पकड़ी 3,000 रुपये महीने में जहाँ पर उसको ज़्यादा लर्निंग मिले। और उसका ये लर्निंग का एटीट्यूड, फुल ओनरशिप के साथ नौकरी ऐसे करना जैसे कि कंपनी खुद की ही है, उसकी जो ये 11 साल की जर्नी है जो कि फुल मेहनत से भरी हुई है, डिटर्मिनेशन से भरी हुई है और किसी भी चीज़ के लिए उसने किसी को मना नहीं किया। मुझे लगता है कि हसल की रियल डेफिनेशन हम आकाश से सीख सकते हैं। आइए आकाश से बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच आकाश फॉर कमिंग हियर टुडे एंड गिविंग अस योर टाइम। Thanks, Avinath. Thanks for inviting me. Pleasure to be here. So Akash, can you just tell a little bit about yourself? That what do you do right now? Where are you working? What is your job? Currently, I'm working as a chief product manager for one of the leading payments bank in India, and I am handling the onboarding product for that fintech. And previously, I worked with a couple of banks. One of the largest bank, I worked for the one of the largest bank of India. I also worked for one of the fastest growing small finance bank of India. I worked with Cardeco also previously. And I was the first hiring for the international business. And before that, I was basically doing some jobs here and there. So थोड़ा सा let's go start from the very childhood. If you can share a little bit about where are you born and brought up, which city, what kind of family was it, joint or nuclear, what did your parents do? My dad had a government job. He had a transferable job, so we used to travel in Rajasthan from Bhiwadi to Bhilwara to Jaipur. So I have two siblings. Both are elder sister to me, and I am the youngest one. So if I'll say, my bringing was in entire Rajasthan, and I've traveled a lot. My mostly schooling was into a government medium schools. Later I've been moved to the English medium school. तो गवर्नमेंट हिंदी मीडियम स्कूल till what class? Till 8th class I In government in government medium. My father is a retired chartered accountant, and currently he is doing small business in Jaipur. What was the financial condition when you were growing up? So we were very middle class people. So basic comfort was there, and as such the things were there with us. Since I am a youngest child, so I've been pampered a lot, and तो एक्सपेक्टेशन वाइज कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी नहीं फैमिली की, एंड कभी उन्होंने मेरी स्टडीज़ पे और इतना फोकस नहीं किया. सो आई वॉज वेरी एवरेज इन academics. I was not that good in studies. So you were not good in studies and academics because you did not like it, or you were not just good at it because you were not able to study properly or perform properly in academics? No, so my father was a very disciplined person, and he used to always push me for these studies. But I was basically trying to study but was not able to perform in the exams. So that was the thing with me. So I've tried to study but not able to get through the exams. I was not good in academics. My parents were amazed, okay, when I got 71% in 10th class. Because till 8th I was in Hindi medium. बट मेरी फैमिली ने भी सोचा कि हम भी हमारे बेटे को इंग्लिश मीडियम में डालेंगे. तो मैं वैसे भी जब मैं हिंदी मीडियम में था तो आई वॉज परफॉर्मिंग एवरेज ओनली. तो मेरा लेवल जैसे इंग्लिश मीडियम में गया तो इट डायरेक्टली बिकम 0 आफ्टर दैट. तो 9th में आई गॉट सेकेंड डिवीजन. Second division is below 60%. Below 60%. I was barely passing the exams. And in 10th, basically I got a good surrounding. I've taken a challenge कि यार नहीं इस बार अच्छा करना है. And I had a good teachers with me. पेरेंट्स बस उम्मीद ही कर रहे थे कि यार हमारा बेटा बस पास हो जाए. लेकिन चीज़ें इस तरह से वर्कआउट करी और मैंने भी थोड़ी मेहनत करी अपने ऊपर, एंड वो मैं इंग्लिश के उससे आया, एंड देन आई गॉट अ डिसेंट 71% मार्क्स, एंड माई पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी बिकॉज मैं उनके लिए पास हो गया था. बट इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है आकाश कि योर फादर वॉज द सिंगल अर्निंग मेंबर एंड योर फादर वॉज इन अ गवर्नमेंट जॉब. तो कोई बिजनेस तो था नहीं फैमिली में. बिल्कुल.
तो ये तो क्लियर होगा कि कुछ पढ़ाई से ही जॉब लगेगी। तो वो क्या इस बारे में बात करते थे कि भैया पढ़ लो, नौकरी नहीं करनी क्या? 11th-12th में ये बात उठी थी क्या? नहीं, डेफिनेटली काफ़ी पढ़ाई पे फोकस था फैमिली का, और काफ़ी पेरेंट्स बोलते भी थे बिकॉज उनकी भी नौकरी थी, एंड पता था कि भाई अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे कुछ नहीं होने वाला। ये प्रेशर तो था ही स्टार्टिंग से, बट समाओ पढ़ाई करता था लेकिन मेरे रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आते थे। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे लाइफ में लेटर समझ में आ गया था कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, एकेडमिक एग्ज़ाम्स मेरे, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। तो ये कब समझ में आया था? 11th-12th में कुछ कोचिंग वगैरह करी थी? सो एज यूजुअल हर पेरेंट्स का सपना होता है कि इंडिया के अंदर कि वो अपने बच्चे को आईआईटी की कोचिंग करने कोटा भेज देते हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने भी एज यूजुअल मुझे भी कोटा में कोचिंग करने भेजा। तो पहले मैंने बहुत मेहनत करी। तो 200 बच्चों का बैच होता था, उसमें आप अकेले होते थे जिसके अंदर आपको सब समझना भी होता था। सिंस आई वो हैड ऑलरेडी हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, और पहले से ही हम लोग बॉयज़ स्कूल में पढ़े होते, तो क्वेश्चन तो डाउट पूछने का तो बहुत दूर की बात होती थी। तो और बहुत महंगी फ़ीस होती थी कोटा वगैरह की। तो वहाँ पे जाते थे तो पहले तो शुरुआत में 2-3 एग्ज़ाम्स दिए, बहुत मेहनत करी, बट रिज़ल्ट ही नहीं आया। तीसरा एग्ज़ाम दिया, उसमें भी रिज़ल्ट नहीं आया। फिर चौथे एग्ज़ाम में मैं डीमोटिवेट ही हो गया। अब घर वालों से कुछ बोल भी नहीं सकते थे क्योंकि घर वालों ने इतने पैसे डाल के भेजा है, और उनको लगता था ये ट्यूशन है, लेकिन एक्चुअली में हमें एक पर्सनलाइज ट्यूशन की ज़रूरत थी जो कि हमें बता सके सारी चीज़ें, बट वो बोल नहीं सकते थे क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। तो हमने सोचा कि इसी के साथ में चलना है, यही है बेस्ट है, कोई गाइडेंस नहीं थी हमारे पास में। तो 7-8 महीने गया मैं कोचिंग, फिर मैं लास्ट बैचेस में आने लग गया। तो मैं इतना डिमोटिवेट हो गया था कि मैंने फिर 3-4 महीने में कोचिंग ही नहीं है, और घर वालों को लगता रहा कि मैं कोटा में कोचिंग कर रहा हूँ। तो 3-4 महीने फिर मेरे जब सेकेंड डिवीज़न आई तो मेरे घर वालों ने मुझे वापस बुला लिया 12th में। एंड देन 12th में मैंने जैसे तैसे करके सर्वाइव किया, एंड आई स्कोर्ड 57% इन 12th क्लास, विच इज ऑल्सो सेकेंड डिवीज़न। बट माई पेरेंट्स वर हैप्पी एंड आई वॉज ऑल्सो हैप्पी कि मैं पास हो गया। ये चीज़ समझ में आ गई कि एकेडमिकली यू आर नॉट गुड एट इट, चाहे हाउ मच एफर्ट यू पुट, यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट। तो फिर इससे कभी कुछ टेंशन हुई कि अब लाइफ में क्या करेंगे, कैसे करेंगे? क्योंकि टिपिकली इन अ मिडिल क्लास फैमिली जिसके बिजनेस नहीं है उसके लिए एक जॉब इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसके लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट हो जाती है। वेरी वैलिड क्वेश्चन। एंड फैमिली से ज़्यादा पीयर प्रेशर बहुत रहता था। मेरे सराउंडिंग में जितने भी मेरे कजन्स थे वो आईआईटी थे, वो टॉपर्स थे, काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस में गए थे, एमबीबीएस वगैरह उन्होंने ग्रेजुएट किया था। तो काफ़ी प्रेशर रहता था, पीयर से भी रहता था, फैमिली से भी रहता था। बट वो रियलाइजेशन नहीं हो पाया, वो एग्ज़ाम्स नहीं निकल पा रहे थे, तो वो प्रेशर रहता था। और लगता था कि यार एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए। आईआईटी तो क्रैक तो बहुत दूर की बात है, AIEEE में भी मेरा कुछ नहीं हो पाया था। एक काफ़ी फेमस जोक है बस्सी का, जो मेरे साथ में एक्चुअली हुआ है कि मैं AIEEE की अपनी रैंक देख के आया कैफ़े से, और मैं घर तक पहुंचा तो मैं अपनी रैंक भूल चुका था। ये मेरे साथ में एक्चुअल हुआ है कि मैं पहुंचा एंड आई फॉरगॉट माई रैंक। और जब मैं अपने पीयर्स में बात करता था, अपने कजन से बात करता था, तो कोई IIT में कुछ कर रहा है, कोई खुद का कोई स्टार्टअप कर रहा है, कोई खुद की एंटरप्रेन्योरशिप सेल चला रहा है, कोई टेक फेस्ट कर रहा है। तो मैं सोचता था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। तो फिर मेरा एक कज़न ब्रदर था जिसका रोबोटिक्स में स्टार्टअप था। उसने एक दिन मेरे को बताया कि रोबोटिक्स करके कोई चीज़ होती है, कंपटीशन चल रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करने आ जा। इंटरनेशनल लेवल रोबोटिक कंपटीशन था कॉलेजेस के बीच में करीबन 150 कॉलेजेस आए थे उसके अंदर। तो मैंने कहा कि यार मैं तो, वो एक्चुअली चेन्नई में एक वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करके कॉलेज है, वहाँ पे कंपटीशन था, और वहाँ पे काफ़ी सीनियर कॉलेज से लोग आए थे। तो मैं कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ, लेकिन इट विल बी मोर ऑफ अ पार्टिसिपेशन ओनली बिकॉज आई हैड अ वेरी सेल्फ डाउट इन माई लाइफ। तो मैंने अपने कॉलेज के सीनियर से बात करी, तो उन्होंने बोला अरे इंटरनेशनल कंपटीशन है, कुछ नहीं हो सकता, तुम नहीं जीत पाओगे, ये वो वगैरह। बट वी वेंट देयर, हम 3 जनों की टीम थी, और हम 150 लोगों के बीच में 2 सेकंड आए थे वहाँ पे। सो दैट वाज द मोमेंट This was which year in college? Second year, third year? दिस वाज इन
सेकेंड ईयर स्टार्टिंग। सेकेंड आने के बाद में हमें पैसे वैसे मिले एंड हमने हमारे जो पैसे मिले उससे हमने घर वालों को गिफ्ट वगैरह, मैंने अपनी मम्मी को साड़ी खरीद के दी थी, तो वो सब हमने किया। क्या तो गिफ्ट मिला था क्या? 7,500 रुपये कैश मिले थे उस टाइम पे, तो वो हमने 3 जने थे, 2,500 रुपये बांट लिए थे, और जो 2,500 रुपये बटे थे उससे पहली बार हमने वो, दैट वाज माय फर्स्ट इनकम। तो वो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा मोमेंट लगा। फिर हम जब कॉलेज आए तो हमें लगा कि दुनिया सेलिब्रेट करेगी, दुनिया खुश होगी, बट दुनिया ने बोल दिया ये तो मटका है। मटका मतलब कि ये तो तुक्का था, तुम गए और तुमने गलती से जीत गए। गलती से जीत गए। अब हम लोग भी क्या है कि लाइफ में थोड़ा सा मतलब सेल्फ डाउट तो था ही बहुत ज़्यादा लाइफ के अंदर, तो हमने भी सोचा यार ये तो तुक्का ही है, मतलब हमारे कहाँ बस की है जीतना। हमने एक और कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, उसमें हम लोग फर्स्ट आ गए, फिर हम जीत के आए, फिर लोगों ने यही कहा कि यार ये भी तुक्का ही है, तो फिर हमने कहा कि हाँ यार ये तो तुक्का ही है, हो सकता है तुक्का ही है। फिर हमने एक और कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, MNIT करके एक कॉलेज है जयपुर के अंदर, नेशनल लेवल रोबोटिक कंपटीशन था, वहाँ पे हम फर्स्ट आए। सेमी ऑटोनोमस रोबोट बनाना था। इस बार जब हम जीत के आए तो फिर वापस से लोगों ने ये बोला कि ये तो तुक्का है। इस बार हमने कहा यार इस बार तुक्का नहीं है यार, इस बार हमारी सही में मेहनत है और हम में कुछ तो बात है कि हाँ जीत के आते हैं हम लोग जब भी जाते हैं तो। एंड मैंने मेरा कॉलेज में स्टार्टअप चालू किया और हम लोग कॉलेजेस में जाके रोबोटिक्स वर्कशॉप देते थे। हम लोग कॉलेज में जाते थे, कॉलेज के प्रोफेसर से बात करते थे और हम कहते थे कि हमने बहुत सारे रोबोटिक कंपटीशन जीते हुए हैं, हमें हर तरह की रोबोटिक्स आती है, मैनुअल से लेके, सेमी से लेके, ऑटोनोमस से लेके। हम लोग आपके बच्चों को रोबोटिक्स सिखाएंगे, किट से हैंड्स ऑन कराएंगे एंड वी विल चार्ज पर स्टूडेंट। तो 400 रुपये से लेके 1200 रुपये तक की वर्कशॉप की कॉस्ट होती थी, 1 दिन से लेके 2 दिन की वर्कशॉप की कॉस्ट होती थी। एंड बेसिस दैट हम कॉलेजेस में जाते थे, वहाँ पे वर्कशॉप देते थे और फिर वहाँ से अर्निंग करते थे। तो बहुत सारे इसमें डिफरेंट मॉडल थे। हम कभी कभार किट भी बेच के आते थे, कुछ लोग केवल किट से हैंड्स ऑन करना चाहते थे, तो डिफरेंट मॉडल थे, तो वो सब करते थे हम लोग। तो हमने इतनी वर्कशॉप दी कि हमारा 3rd ईयर में जो रेवेन्यू था वो 10 से 14 लाख रुपए के बीच में था। अच्छा। हाँ, कॉलेज टाइम के अंदर ही। फिर 4th ईयर में वही फिर जॉब का प्रेशर, कैंपस प्लेसमेंट, फैमिली प्रेशर वगैरह वो चालू हुआ, तो हमने 4th ईयर में भी कंटिन्यू करा विद दी जॉब्स एंड एवरीथिंग। बट 4th ईयर के बाद जब सबके प्लेसमेंट हो गए थे, मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ था क्योंकि मेरी 57% थी 12th क्लास के अंदर। एंड द बेसिक क्राइटेरिया फॉर एनी कंपनी टू सेट इन इज कि 60% तो मिनिमम होना चाहिए। तो मैं 1-2 कंपनी में बैठा था, उसमें मेरा एप्टीट्यूड नहीं निकला था और बाकी किसी कंपनी में मैं बैठ नहीं पाया। एंड आई थॉट कि यार मैं स्टार्टअप को ही कंटिन्यू करूँगा, तो मैंने 2 महीने 3 महीने कंटिन्यू किया, लेकिन देन मेरे पास में वो पैसे ही खर्च हो गए थे, तो आई वॉज तो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से वो स्टार्टअप कंटिन्यू नहीं कर पाए। और फिर गाइडेंस भी नहीं थी हमारे पास में। तो जो साथ में दोस्त वगैरह थे उनके ऊपर भी फैमिली का प्रेशर था जॉब करने का, तो उनकी जॉब लग गई थी तो वो जॉब करने चले गए। मैंने ट्राई किया लेकिन मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे, सो आई वॉज बेयरली हैड एनीथिंग विद मी, मतलब तो फिर मुझे भी जॉब की तरफ जाना पड़ा। तो जॉब कहाँ पे स्टार्ट किया, जॉब कैसे मिली पहले? तो अगर प्लेसमेंट में बैठ नहीं पाए तो पहली जॉब कैसे मिली, कहाँ मिली, क्या जॉब थी? जॉब बहुत ही मतलब बहुत ही लो प्रोफाइल जॉब थी। जो जॉब थी वो 8,000 रुपये महीने की जॉब थी उस टाइम पे, जो मेरे को दिस इज 2012। दिस इज 2012। कंपनी जो थी वो इलेक्ट्रॉनिक मीटरिंग कंपनी थी, वो इलेक्ट्रॉनिक मीटरिंग बनाती थी और वहाँ पे मैं बिजनेस डेवलपमेंट सेल्स एग्जीक्यूटिव था। और वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स के टेंडर्स में पार्टिसिपेट करते थे। तो 11 महीने मैंने वहाँ पे काम किया। वहाँ पे मतलब 11 महीने एकदम वेस्ट थे मेरे लिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ लर्निंग नहीं थी। वहाँ पे मैं मीटर उठाता था और वहाँ पे हम लोग बस वेट करते थे 5 कब बजेंगे, एंड द एंटायर ऑफिस यूज टू आफ्टर 5 PM यूज टू लेफ्ट फॉर दी होम। सो दैट वॉज द थिंग। सो आई रियलाइज कि यार कुछ तो बहुत गंदा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि कॉलेज में मैं मतलब स्टार्टअप कर रहा था, पैसे आ रहे थे। फिर मैंने कॉलेज के कंसेक्यूटिवली 2 टेक फेस्ट भी किए थे, मैं उनका हेड था। देन सडनली रियलाइजेशन ऑफ लाइफ की यार अल्टीमेटली अब
पैसा कमाना है, नौकरी करनी है. एंड नौकरी जब देखी तो उसमें 8,000 रुपये मिलते हैं, और मतलब उसमें भी मैं मतलब आई वॉज नॉट लर्निंग एनीथिंग. देन आई रियलाइज कि दिस विल नॉट वर्क. आई लेफ्ट द कंपनी इमीजिएटली आफ्टर 11 months एंड आई जॉइंड अ ऑर्गेनाइजेशन एट 3,000 रुपीज़. एट 3,000 रुपीज पर मंथ. 3,000 रुपीज़ पर मंथ. बट वो मेरे को गारंटी ये दे रहा था कि वो मुझे सिखाएगा. तो ये क्या जॉब थी? ये एक कंपनी थी जो कि फ्रीलांसिंग का काम करती थी, एंड वो बाहर से प्रोजेक्ट लेती थी, एंड दे यूज टू राइट दी MBA थीसिस, डेटा एनालिटिक्स, मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स. तो इस तरह का वो काम करते थे. तो उसने कहा कि यार 3,000 रुपये दूंगा तेरे को, लेकिन तेरे को ये सब काम करने को मिलेगा. तो Market मैंने research कहा वगैरह. मार्केट रिसर्च, डेटा एनालिटिक्स, MBA के थीसिस. तो मैंने सोचा एक मेरा डिफरेंट पर्सपेक्टिव बनेगा, लर्निंग काफ़ी अच्छी होगी. तो मैंने कहा ठीक है यार, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लर्निंग इज़ द मेन की. और मुझे अभी भी याद है, आई स्टिल रिमेंबर कि मैं जब पहुंचा पहले दिन वहाँ पे, तो उसके पास कुर्सी नहीं थी. उस ऑफिस में में कुर्सी नहीं थी. ऑफिस में जो कुर्सी थी वो ऑक्यूपाइड थी पहले ही. तो मैंने पूछा कि सर कहाँ बैठूँ. लैपटॉप की तो पहली बात हो गई थी कि उसने कहा कि लैपटॉप तो तेरे को तेरा ही लाना पड़ेगा, मैं नहीं दूंगा. तो मैंने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं लैपटॉप मेरा ले आऊँगा. उसने बोला कि कुर्सी तो नहीं है यार, जुगाड़ते हैं कहीं से. तो मैंने कहा सर डोंट वरी, मैं घर से जाके कुर्सी लेके आता हूँ. मैं गया, मैं घर से कुर्सी लाया और मैंने वहाँ पे रख दी. तो उस लेवल का मैंने मतलब हसल मारा है जब मैं मतलब ऑलमोस्ट जॉबलेस था. तो मैंने लेकिन वहाँ पे 6 महीने 20-20 घंटे डेली, 18-18 घंटे काम किया. एंड वहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ सीखने को मिला मेरे को. तो उसके बाद फिर मैंने एक रियल एस्टेट एनालिटिक्स फर्म ज्वाइन करी, क्योंकि मेरे को एनालिटिक्स का बैकग्राउंड आ गया था. दैट वाज जॉब इन मुंबई, एंड वो मुझे 22,000 रुपये टाइप्स दे रहे थे बॉम्बे के अंदर. तो आई थॉट दैट वाज अ वेरी गुड डिसेंट जंप, बिकॉज वो 3,000 रुपये की जो लर्निंग थी वो अल्टीमेटली मेरे को 22,000 रुपये पे करने लग गई थी. सो आई जॉइन दैट कंपनी, रियल एस्टेट एनालिटिक्स. एंड आई जॉइन दैट कंपनी, द रीज़न बीइंग इज कि एक तो काफ़ी अच्छा जंप मिल रहा था मुझे, और वहाँ पे रियल एस्टेट एनालिटिक्स भी सीखने को मिल रहा था मुझे. सो देन आई जॉइन, आफ्टर दैट आई गॉट प्लेस इनटू कार्डेको. एंड कार्डेको वाज वेरी एट इनिशियल स्टेज. सो आई जॉइन दिस कंपनी इन 2014. वहाँ पे मुझे एज ए बिजनेस एनालिस्ट आई जॉइन ओवर देयर, एंड आई वॉज द फर्स्ट हायरिंग फॉर द इंटरनेशनल बिजनेस. सो दे वॉन्टेड टू एक्सपैंड इन टू इंटरनेशनल मार्केट, and they wanted to explore and do some businesses in the international market. So I was the first hiring over there, and my role was to launch into different countries and then make the revenue out of those launches. तो कार देखो में हाउ मच टाइम वर यू देयर एट कार देखो? एंड सो कार देखो में मैं 2.5 साल था, और मुझे लगता है कि कार देखो ने मेरी लाइफ में काफ़ी मेरा पाथ सेट किया, बिकॉज उन्होंने मेरी हार्डवर्क को रिकग्नाइज किया. आई गॉट प्रमोशन विद इन 6 months. मैंने 3 महीने के अंदर ही 23 कंट्रीज लॉन्च कर दी थी. एंड आई वॉज दी कंट्री मैनेजर फॉर इंडोनेशिया, जो कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेवेन्यू मेकिंग एंड ट्रैफिक जनरेटिंग बिजनेस थी. एंड बेसिस दैट कार्डेको ने फिर स्ट्रेटेजिकली डिसाइड किया कि दे विल फोकस ओनली ऑन इंडोनेशिया. सो दैट्स हाउ दे हैव नाउ, देयर वेबसाइट इज oto.co.id, and it's the number 1 auto portal in Indonesian market. Can you share some examples of any problems which you faced because you were not coming from a good college, or you were not coming from a good company? So was there any like prejudice against you when you were joining like when you were talking to 20 people in the team, 10 people, and in the growth was there an issue because of that? See, ये मतलब very good question, and I appreciate that you are putting this question in front of everyone. ये bias, ये prejudice रहता है, और हर कंपनी में रहता है, एंड स्पेशली इंडियन माइंडसेट के अंदर, जहाँ पे IITians एंड IIMs को ऑलवेज प्रेफर किया जाता है ओवर एंड अबव एनी नॉर्मल डिग्री कॉलेज. तो मेरे साथ में जब मैंने कार देखो ज्वाइन की, तो मोस्टली वहाँ पे IITians ही थे. तो हम सेम पोस्ट पे होने के बावजूद भी मेरे कलीग्स को मेरे से ज़्यादा सैलरी मिलती थी. अच्छा, हाँ. लाइक कितनी ज़्यादा सैलरी मिलती थी? ऑलमोस्ट 25 to 30% ज़्यादा सैलरी मिलती थी. सेम पोजीशन थी और सेम जॉब था? बिल्कुल सेम पोजीशन थी, सेम जॉब था. एंड उसमें भी वो मेरे से कॉलेज वाइज, मतलब अगर मैं एक्सपीरियंस वाइज बात करूँ, तो वो मेरे से
2-3 साल जूनियर ही थे, तो सेम काम करते थे हम लोग. इवन आई वॉज परफॉर्मिंग बेटर देन दी मैनी ऑफ दी IITians ओवर देयर, बट स्टिल आई वॉज गेटिंग. तो डिड यू डिस्कस दिस विद योर लीडरशिप या मैनेजमेंट की ऐसा क्यों है? एक्चुअली सही बताऊँ ना तो उस टाइम पे इतना ज्ञान ही नहीं था, चमक ही नहीं थी, कि हमें लगता था कि ऐसा ही होता है, ये तो मतलब विधि का विधान है. इस तरह की सोच थी मेरी कि यार ये तो IITian है तो उसको तो पैसा मिलना है ही. अपन तो यार एक छोटे बेसिक कॉलेज से आए हैं, तो हमें तो, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमें तो घिसना पड़ेगा, हमें मचाना पड़ेगा, अदरवाइज अभी इतना मिल रहा है, इतना भी नहीं मिलेगा शायद तक. तो टू कम्पीट विद देम, मतलब मुझे उनसे डबल मेहनत करनी पड़ती थी. थोड़ा इस पे इफ़ यू कैन गिव अ लिटिल बिट मोर, कि किस तरह की मेहनत करता था, किस तरह का हार्ड वर्क पुट इन किया है इन दोज अर्ली 4-5 years, जस्ट टू गेट अ सेंस. जैसे हार्ड वर्क एवरीबडी सेज कि भाई आई एम अ हार्ड वर्किंग एम्प्लॉई, एवरीबडी सेज दैट कि भाई हम भी हार्ड वर्क करते हैं, बट बिल्कुल. वॉज दिस अ यूजुअल हार्ड वर्क या कुछ अलग था, मतलब विच यू आर सेइंग कि डबल मेहनत जो थी? तो कार देखो में मेरे को डायरेक्टली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल रहा था, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट भी आता था चीज़ें करने में वहाँ पे, कि डायरेक्टली यू आर इनटू द वॉर. मतलब एक आपके डिसीजन से पूरी मतलब कंपनी की स्ट्रैटेजी और चीज़ें बदल सकती हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को 5 कंट्रीज़ में मैं मतलब 23 कंट्रीज़ के अंदर लॉन्च किया मैंने. तो मेरे को पता था कि इंडोनेशिया जो कंट्री मेरे पास में है, अगर मुझे उसमें पोटेंशियल दिखता था, अगर उसको मैंने सही ढंग से रेवेन्यू मेकिंग बिजनेस बना दिया, सो दिस कुड बी अ गेम चेंजर फॉर दी कार. देखो मेरे पापा एक डायलॉग बोलते हैं, और मतलब ये मैंने अपनी लाइफ में हमेशा बिलीव किया है कि नौकरी में कभी नौकरी नहीं करनी चाहिए. आपको उसको हमेशा है ना अपना बिजनेस जो होता है ना, एकदम धंधा, खुद का बिजनेस टाइप आपको ट्रीट करना चाहिए. तो ये मेरे अंदर था एक, तो मैंने कभी भी उसको है ना ऐसे ट्रीट नहीं किया कि यार ये तो एक नौकरी है, ये मेरा है, मुझे फोड़ना है और मुझे इसमें एकदम मचाना है. एंड आई स्टार्टेड गेटिंग द रिकॉग्निशन, आई गॉट प्रमोशन विद इन 6 months, आई गॉट द सेकंड प्रमोशन इमीडिएटली आफ्टर दैट. तो ये बहुत ही मतलब आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट विच यू आर सेइंग दैट इवन दो टेक्निकली यू वर डूइंग अ जॉब, but you always thought that you are working for your own company. When you compare yourself with another employee who is doing it as a job versus the way you are doing, तो can you give some examples कि देखो ये फ़र्क हो गया काम करने के तरीके में? जब आप खुद का समझ के बिजनेस करते हो तो आप के अंदर क्यूरोसिटी और लर्निंग, आप हर पहलू को समझने का ट्राई करते हो कि इस चीज़ से मेरा रेवेन्यू कितना इम्पैक्ट होगा, इस पर्टिकुलर नेगोशिएशन से और इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप से मैं कितना इम्पैक्ट कर लूँगा. जैसे कि मेरे को अभी भी याद है, मैं एक बहुत ही सिली एक्टिविटी करता था, तो हमें एक ट्रैफिक जनरेट करना था कार्डिको के अंदर, मतलब इंडोनेशियन वेबसाइट के अंदर. तो मुझे लगता था कंटेंट इज़ द किंग, जो कि मेरे लिए ट्रैफिक बिल्डअप कर पाएगा. तो मैं बहुत ही अपडेटेड रहता था इंडोनेशियन मार्केट के कंटेंट से लेके, तो मैं कंटेंट से काफ़ी अपडेटेड रहता था. मैं बहुत ही रेलेवेंट कंटेंट ट्राई करता था कि यार वहाँ की जनता को जिस तरह का कंटेंट पसंद आए. फिर मैं क्या करता था, मैंने ना सारे ऑटो के जितने भी पोर्टल्स थे वो ज्वाइन कर लिए थे, और जो भी पोस्ट हम लोग लिखते थे मैं उधर शेयर करता था, खुद मैं शेयर करता था इंडिविजुअली जाके, चाहे किसी ने बोला ही नहीं करने के लिए, लेकिन मैं खुद जाके शेयर करता था. तो मेरे पास में ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी बहुत आने लग गया था. तो मेरे को लगता है कि मतलब जब आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हो या नौकरी करते हो, तो आपको अपने बिजनेस की तरह उसको करना चाहिए. So the word which we generally hear these days, ownership, yes. You really took that ownership on yourself कि ये मेरा काम है, मेरे बिजनेस की तरह मैं इसको चलाऊंगा. बिल्कुल. So ownership मेरे को लगता है कि is the key word here which played a significant role in my growth. So were you appreciated also because of this by your management? So मैं इसमें मतलब I'll have 2 points. Okay. तो पहली बात तो आई डोंट नो, बट विद द इंडियन मैनेजर दे आर वेरी इनसिक्योर. तो और कुछ अच्छे भी होते हैं, तो मेरे को दोनों तरह के मैनेजर्स मिले. तो कुछ मैनेजर्स तो ऐसे मिले जो कि क्रेडिबिलिटी आपसे लेना चाहते हैं, दे आर वेरी इनसिक्योर, तो वो आपसे काम करवाते थे और मैनेजर्स और मैनेजमेंट के सामने क्रेडिबिलिटी अपनी प्रूव करते थे. मेरे को कुछ बहुत अच्छे मैनेजर्स ऐसे भी मिले जो कि जिन्होंने मेरे को अप्रिशिएट किया, जिन्होंने मेरी लाइफ में काफ़ी, और उन्होंने मेरे साथ एज ए मैनेजर नहीं एज ए फ्रेंड की तरह काम किया, और आज मेरे वो काफ़ी अच्छे मेंटर है लाइफ के अंदर. मुझे लगता था कि मुझे खुद का बिजनेस करना है, तो मैंने खुद का एक स्टार्टअप चालू करने का ट्राई किया.
जिसका नाम था शेफ इन मी। उसमें हम लोग प्री पोर्शन इंग्रेडिएंट्स कस्टमर्स को बांटते थे एंड वो रेडी टू कुक टाइप होता था, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स बांटते थे। बट द आइडिया वॉज अहेड ऑफ इट्स मार्केट। मैंने कुछ 40 डब्बे बेचे, यूनिट इकोनॉमिक्स काम नहीं कर रही थी, तो आई हैड टू शट इट डाउन। सो आई थॉट कि यार मेरे को इसमें काम करना है। सो आई जॉइंड अ कंपनी कॉल्ड शेफ्स बास्केट। वो भी सिमिलर लाइन में थी और वो सेम कर रही, तो आई थॉट कि यार उसमें जाता हूँ, वहाँ सीखूंगा और वहाँ से फिर मैं अपना कुछ कर पाऊंगा, खुद का कुछ वापस कर पाऊंगा। तो वो मैंने एक थॉट प्रोसेस रखी वहाँ पे। बट अनफॉर्चुनेटली दैट स्टार्टअप ऑल्सो गॉट शट डाउन विद इन 6 months। तो वो एक जो रिस्क था वो प्ले नहीं किया समझ गया। एंड देन आई वॉज जॉबलेस फॉर लाइक 2 or 3 months। अच्छा, so when Chef's Basket shut down, तो you were without a job for a couple of months. yes। तो उस टाइम पे क्या करा फिर उन 2-3 महीनों में? What was the mindset? तो उस टाइम पे तो सबसे पहले तो यही था कि यार जो बेसिक सेविंग्स हैं वो ख़त्म हो चुकी थी। 2-3 महीने के अंदर ज़्यादा पैसा रहता था नहीं। एंड तो सबसे पहले यही ट्राई किया कि यार कैसे ना कैसे करके वापस से दूसरी जॉब लाई जाए। एंड पैरेलली मैंने सोचा कि यार कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देते हैं। आई अगेन ट्राई टू, मैंने सोचा कि MBA करता हूँ मैं, तो मेरी कोई फॉर्मल MBA डिग्री थी नहीं मेरे पास में कुछ भी, तो मैंने GMAT की तैयारी करी थी। तो मैंने GMAT की तैयारी करी 2-3 महीने, तो उसमें मेरा कुछ हुआ नहीं। तो क्या स्कोर आया GMAT में? सो इन द फर्स्ट अटेम्प्ट आई गॉट 670 एंड तो ये था मेरा। तो मतलब फिर GMAT के बाद क्या so किया? I joined one of the largest small finance bank of India in Jaipur. So this is but a shift, right? Till now you were in a tech startup and this is a somewhat traditional bank. तो वहाँ पे क्या रोल था और कैसे मिली है जॉब और क्यों ली है जॉब? So पहली बात तो जॉब इसलिए ली क्योंकि पैसे नहीं थे। जॉब चाहिए थी, कोई सी जॉब भी चाहिए मिल थी, जाए। है ना। GMAT में कुछ हुआ नहीं था, पुरानी वाली कंपनी बंद हो चुकी थी, कार देखो में इतना अच्छा चल रहा था। बट आफ्टर दीज बेट्स विच नो वन वर्कड आउट, तो आई वॉज अगेन कि यार वापस से जीरो पे आ चुके हैं, तो कुछ तो चाहिए था लाइफ के अंदर। तो बैंक काफ़ी सुनता रहता था मैं। तो मेरा एक दोस्त था, वो कार देखो से वो उस बैंक में गया था, तो उसने कहा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आई कैन अरेंज योर इंटरव्यू। तो मेरा इंटरव्यू अरेंज हुआ एंड आई गॉट सेलेक्टेड ओवर देयर। तो मेरा जो बैकग्राउंड था वो बेसिकली बहुत ही नॉन कन्वेंशनल था, डिजिटल था, काफ़ी हसलर वाला था। तो उनको उस तरह का बंदा चाहिए था जो कि उनकी डिजिटल लेंडिंग और अनसिक्योर्ड लेंडिंग को कर सके, बिकॉज दे नेवर टेस्टेड द वाटर्स ऑफ द अनसिक्योर्ड लेंडिंग। तो उधर जो मेरे जो बॉस थे जिन्होंने हायर किया, वो काफ़ी ओपन माइंडसेट के थे। तो उनका एटीट्यूड ऐसा था कि उनको ज़रूरी नहीं, उनको ऐसा बंदा चाहिए था जो कि लेंडिंग बैकग्राउंड से ना हो, जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से हो और थोड़ा डिफरेंटली सोच पाए, फ्रेश आइज के साथ। फ्रेश आइज़ के साथ में सोच पाए। तो वहाँ पे जर्नी कैसी रही? टोटल कितने साल काम किया? देन अगेन वो जर्नी काफ़ी अच्छी रही। 3.5 साल मैंने काम किया, वहाँ पे भी काफ़ी रिकॉग्निशन मिला मेरे को। वहाँ पे मैं पूरा का पूरा लेंडिंग, अनसिक्योर्ड लेंडिंग में कंज्यूमर लेंडिंग करके एक पोर्टफोलियो था, वो पूरा हैंडल करता था मैं। 60-70 लोगों की सेल्स टीम थी मेरे पास में। हमने तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम यू वर लीडिंग अ टीम योरसेल्फ, या कार देखो में भी टीम थी? कार देखो में भी टीम थी, लेकिन इट वाज अ वेरी स्मॉल टीम विद मी। बट यहाँ पे पूरी 60-70 लोगों की सेल्स टीम थी, 10-15 लोगों की ऑपरेशन की टीम थी, जो आई वाज डायरेक्टली मैनेजिंग ओवर देयर। हमने 100 करोड़ से ज़्यादा का लोन पोर्टफोलियो बनाया, हमने 50,000 से ज़्यादा लोन डिसबर्स किए। हमारा NPA पूरे इंडस्ट्री में सबसे कम था, 1.8%। तो काफ़ी अच्छा वहाँ पे काम किया मैंने। 1.5-2 साल पहले मैंने कंज्यूमर ड्यूरेबल लेंडिंग देखा, लेकिन कोविड के बाद में हमें उस बिजनेस को बंद करना पड़ा। देन आई अगेन ऑर्गेनाइजेशन मूव मी टू दी क्रॉस सेल वर्टिकल, तो विच आई वाज आल्सो हैंडलिंग। एंड उस टाइम पे फिर हम लोग साल का 1,000 करोड़ कर रहे थे। तो वहाँ पर डिड यू एवर गेट एनी क्वेश्चंस एंड डाउट्स ऑन योर जजमेंट फ्रॉम on your capability from others, that he will not be able to perform because he is a very new person in the banking itself as a sector, and how did you navigate these doubts? नहीं सी मतलब डेफिनेटली ये वाले क्वेश्चंस आए भी थे। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव क्वेश्चन ओके हाउ यू विल डू दिस काइंड ऑफ बिजनेस बिकॉज सिंस यू हैव अ नॉन बैंकिंग बैकग्राउंड। बट मेरे साथ वहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ हुई कि मेरा मैनेजर जो था, मेरा जो बॉस था, वो काफ़ी सपोर्टिव था, वो काफ़ी
KT सेशन रखता था, वो काफ़ी मेरे को पर्सपेक्टिव देता था. ही वॉज अ सीजन बैंकर एंड सो एज आई टोल्ड यू ही वॉज नॉट अ मैनेजर, ही वॉज मोर ऑफ अ फ्रेंड. तो हमारी हेल्दी डिबेट होती थी. एंड सिंस मेरे अंदर भी सिंस वो अगेन प्रैक्टिकल था, और जब मैं बैंकिंग के अंदर घुसा तो आई वॉज ब्लोन विद द इम्पैक्ट कि आपकी एक छोटी सी चीज़ भी कितना इम्पैक्ट लेके आ सकती है पूरी इकोनॉमी के अंदर. तो जब मैंने if you can give an example of that. तो बेसिकली हमने कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन चालू किया था. कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन हम लोग वाइट गुड्स बेसिकली मोबाइल फोन्स और वगैरह लोन पे देते थे. और उस बैंक की खासियत थी कोर मार्केट्स के अंदर, Tier 3 Tier 4 के अंदर. तो जब हमने कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन चालू किया तो हमने देखा कि हमारे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, जब वो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन के लिए आते थे तो लोग इतने इंटरेस्टिंगली मतलब पार्टिसिपेट करते थे, क्योंकि उनको सही में है ना कोई लोन मिल नहीं रहा था. उनको उस तरह के लोन्स की फैसिलिटीज़ नहीं थी, क्योंकि बैंक्स प्रोवाइड करवाते नहीं थे. लेकिन हमारे कोर मार्केट में प्रेजेंस थी तो हम लोग उस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा पा रहे थे. तो लोगों ने हमारे साथ में इन्वर्टर्स ऑर्डर करना चालू कर दिए, क्योंकि वहाँ पे बिजली नहीं आती थी. लोगों ने हमारे साथ में डीप फ्रीजर रखना चालू कर दिया जिससे उनके बिजनेस वगैरह सेटअप हो पाए. तो आई हैव सीन द इम्पैक्ट कि यार मतलब इतने फिर छोटे से स्केल से इतना मैं लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट ला सकता हूँ. अगर ये गेम बड़ा हो जाए तो आई कैन टच थाउजेंड्स ऑफ लाइफ्स. तो वो जब मेरे को चमका तो मेरा सडनली इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ गया, और मैंने देखा कि बैंकिंग में बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसीज है, बैंकिंग बहुत ज़्यादा मैनुअल है, और लोगों को लोन लेना होता है तो वो कुछ भी करते हैं. वो मतलब 2-3 वेट करने के लिए भी रेडी हैं. तो बहुत इनएफिशिएंसी थी. तो फिर मैंने देखा कि अगर प्रोडक्ट लाया जाए, डिजिटल जर्नीज बनाई जाए, ऑटोमेशन यहाँ पे लाया जाए, तो दैट कैन चेंज द गेम. वही डायलॉग मैं फिर से बोलूँगा, नौकरी में कभी नौकरी नहीं करनी, आपको अपना बिजनेस की तरह उसको ट्रीट करना है. एंड दैट्स व्हाट आई हैव डन इन माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो. तो मैंने जो भी प्रोजेक्ट लिया, मैंने ये सोचा कि ये मेरा बिजनेस है. लर्निंग को मैंने मेन फोकस रखा, मनी को मैंने कभी अपनी लाइफ में फोकस नहीं रखा. मैंने हमेशा ये ट्राई किया कि यार इससे क्या सीख सकते हैं, इससे क्या बढ़ सकते हैं और क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं. हमेशा मेंटेन किया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पॉजिटिव एटीट्यूड. मैंने देखा है कि बहुत एम्प्लॉयज़ होते हैं, मैं बहुत एम्प्लॉयज़ से बात करता रहता हूँ, तो बहुत लोग नेगेटिव हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ऑर्गेनाइजेशन की बिचिंग करने लग जाते हैं, वर्क लाइफ बैलेंसेस की बातें करने लग जाते हैं. तो मैं भी बोलूँगा कि अभी जो एज है ना, वो हमारी नेगेटिव चीज़ों से दूर रहने की है. अभी थोड़ा पॉजिटिव रहना जरूरी है, कि अगर मैनेजमेंट ने बोला है, अगर सीनियर्स ने बोला है कि इतना अचीव करना है, तो हम उससे ज़्यादा करके दिखाएंगे. इस तरह का एटीट्यूड हमें बिल्डअप रखना है वहाँ पे. हमें हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखना अपनी टीम के अंदर. तो ये बात बिल्कुल सही है और सुनने में भी अच्छी लगती है. बट स्टिल, and I have also worked with a lot of people, most people who are doing jobs, as you yourself said, do not give 100% ownership in a way that like going really beyond their duty, right? तो उसका, and when you are doing it, तो इसका कुछ फ़ायदा है एक्स्ट्रा? मतलब do you think उसका कुछ फ़ायदा मिलता है लॉन्ग टर्म में? यार मुझे तो लगता है कि मतलब मेरा पर्सनली फीलिंग है कि फ़ायदा मिलता है. एक तो बहुत अच्छी विजिबिलिटी मिलती है आपको मैनेजमेंट के सामने, सीनियर्स के सामने. दूसरी चीज़ ये है कि आप हमेशा आपको चीज़ें पता रहती हैं प्रोजेक्ट के अंदर, तो यू आर द लीड. तो हमेशा आपको ही मतलब फ्रंट फेसिंग समझा जाएगा और आपको ही लीड माना जाएगा. एंड आई ऑलवेज लाइक टू प्ले अ लीड रोल. आई डोंट वांट टू बी अ साइड रोल whenever I am doing any project. तो if you want to be a lead, then you have to behave like a lead. और अगर आप लीड रहोगे तो उसी तरह की एक्सपेक्टेशंस होंगी और उसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्यूचर्स में आएंगी. तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट बहुत ज़्यादा है. और मैंने तो कभी कभार देखा है कि इंस्टेंट बेनिफिट भी मिलता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर. इमीडिएट प्रमोशंस, इमीडिएट आप टारगेट अचीव करते हो तो इमीडिएट आपको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, आपको टीम दे दी जाती है, आपको बड़ा पोर्टफोलियो हैंडल करने के लिए दे दिया जाता है. हैविंग सेड दैट कि प्री रिक्विजिट है, आपको ओनरशिप लेनी पड़ेगी, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करके रखना पड़ेगा, आपको कोलैबोरेटिव अप्रोच रखनी पड़ेगी, आपको सारे कॉर्नर्स पता होने चाहिए, सारे एजेस पता होने चाहिए, आपको उसको एकदम बिल्कुल अपने धंधे की तरह ट्रीट करना है, तभी आपकी ग्रोथ आ पाएगी. So Akash, you talked about ownership. Can you give some examples of some examples which come to your mind which really sets you apart in terms of ownership? So I just want to share one incident. Okay, when it becomes your baby,
then you go till any level to achieve that success and to save that particular thing. मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी थी, शेस बास्केट, और वो FMCG कंपनी थी, बैंगलोर बेस्ड ही कंपनी थी वो, एंड बैंगलोर में बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, तो एक उन्होंने गोदाउन ले रखा था, वही हमारा ऑफिस था, उधर ही सारे प्रोडक्ट वगैरह रखे रहते थे सब। तो कोरमंगला की बात है, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, तो गोदाउन में पानी भर गया था, रात के 1-2 बजे की बात है। तो मुझे पता पड़ा कि गोदाउन में पानी भर गया है। आई इमीडिएटली वेंट ओवर देयर, और मुझे याद है कि मैं रात को 2 बजे अकेला सामान इकट्ठा कर रहा हूँ जो पानी में तैर रहा था, कि जितना ज़्यादा सैंपल हो सकता है, जितने ज़्यादा प्रोडक्ट हो सकते हैं, उनको बचाऊँ मैं, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी लॉसेस में थी और ईच एंड एवरीथिंग वाज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। और हमारी एक्चुअली नेक्स्ट डे एक वर्कशॉप थी जहाँ पे वो हमें सैंपल्स लेके जाने थे। तो मैंने एक मेरे दोस्त की कार मंगाई, उसमें मैंने वो पानी में कूद कूद के सैंपल्स को इकट्ठा किया, और मैंने मेरे दोस्त की कार थी उसमें वो रखे, जिससे कि वो सैंपल्स मैं अगले दिन ले जा सकूं और लोगों को दिखा सकूं। I also hear a counter narrative from many team members, which is around, work-life balance. That, like, whatever you are telling me seems like, you put majority of your day in your work and you are workaholic and you really are very serious about your job. But what is your view on that when people ask that question? I don't know, but if I'll say something like this, okay, about the work-life balance, then people would not like this. But I want to, tell each and everyone, okay, who is right now in the age group of 23 to 29, please go away with the LinkedIn post of work-life balance. अभी उम्र है घिसने की, अभी उम्र है काम करने की। वर्क लाइफ बैलेंस के चक्कर में जाओगे, वर्क लाइफ बैलेंस उनको सूट करता है अगर इफ़ यू हैव ए गुड डिग्री, इफ़ यू आर फ्रॉम अ गुड कॉलेज, बट हम लोगों के पास में वर्क लाइफ बैलेंस का कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब आपके पास में गुड डिग्री भी नहीं है, गुड कॉलेज भी नहीं है, और आप वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर रहे हो, तो यू आर इन सीरियस ट्रबल। सो गेट अवे विद दिस वर्क लाइफ बैलेंस पोस्ट जो लिंक्डइन पे देखते रहते हैं हम, हर कोई वर्क लाइफ बैलेंस की बात करता है। मैं बोलूँगा कि मार्केट में इतना कंपटीशन है कि अगर आपको परफॉर्म करना है, एक्सेल करना है, और आपको किसी फैंसी डिग्री वाले से आगे निकलना है, तो आपको उससे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। डबल नहीं, ट्रिपल करनी पड़ेगी, क्योंकि वो स्मार्ट भी है आपसे ज़्यादा। तो हार्ड वर्क आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अभी टाइम है घिसने का। एक बार आपने अपना प्लेटफॉर्म सेट कर लिया, एक बार आपने अपनी एक्सपर्टीज सेट कर ली, देन बिलीव मी, मार्केट में एक सर्टेन लेवल के बाद में डिग्री की वैल्यू नहीं रहती है, आपके काम की और आपके एक्सपीरियंस की वैल्यू रहती है। सी द पॉइंट इज, फेलियर्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। आपको उससे डिस्करेज नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना है, आपको लगे रहना है, आपको कुछ ना कुछ करते रहना है। फेलियर्स रहेंगे, बट यू हैव टू डू समथिंग। And one of the very important thing which helped me a lot, my mentors. मेरे mentors ने मेरे को बहुत हेल्प करी पूरी जर्नी के अंदर। मेरे को कोई भी सेटबैक होता था, या फिर कोई भी डाउट होता था, या फिर कोई भी डिसीजन लेना होता है, तो मेरे को लगता था कॉलेज टाइम में वो मेंटर्स नहीं थे जो मेरे अब बने हैं। और उन मेंटर्स के पास में मैं जब भी जाता हूँ कोई भी डाउट लेके, तो वो काफ़ी अच्छी एडवाइस देते हैं। तो जब आप ऐसे कन्फ्यूजिंग वाले मोड पे होते हो, जब आपको गाइडेंस चाहिए होती है, या फिर आपको डाउट होता है अपने आप ऊपर, तो आपके मेंटर्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मैं सभी यहाँ पे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि जो भी अपनी लाइफ में इस तरह से स्ट्रगल कर रहा है, प्लीज़ मेक योर मेंटर्स, प्लीज़ ट्राई टू डिस्कस योर प्रॉब्लम्स विद देम। डोंट कीप योर प्रॉब्लम्स विद योर सेल्फ, डिस्कस विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड विद योर मेंटर्स, एंड डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग गुड आउट ऑफ इट। सो मेरे लाइफ में जो मेरे मेंटर्स हैं, तो कुछ मेरे मेंटर्स मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से हैं, कुछ मेंटर्स मेरे आसपास के मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में से हैं, और कुछ ऐसे मेंटर्स भी हैं जो कि मुझे नेटवर्किंग और कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मिले थे। तो जो मेरे मेंटर्स हैं, वो उनसे मेरा रिलेशनशिप मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस में चालू हुआ था। मैं जब भी उनके साथ में जाता था, तो उनके जो पॉइंट्स होते थे
वो काफ़ी मुझे रेलेवेंट लगते थे। और जब भी मैंने उनकी वो सजेशंस माने हैं तो वो डेफिनेटली मेरे को हेल्प किया है उनके अंदर। और मेंटर जो है वो हमेशा, मेरे को ऐसा लगता है कि वो आपका आइडियल होना चाहिए। उसकी ग्रोथ को आप हमेशा विजुलाइज करते हो कि यार काश मेरी ऐसी ग्रोथ होती, तो आप हमेशा उसी तरह के मेंटर्स के साथ में डील करो, क्योंकि वो देन वो लाइक माइंडेड पीपल होता है, वो आपको उसी तरीके से आपकी सोच के हिसाब से बताता है, एंड देन आप उसी डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हो। You have also benefited a lot from the mentorship of your managers, good leaders. And now that you are managing such a big team yourself and you are in every sense a manager and a leader yourself, so what is your philosophy of working and managing working with a team and managing a team? यस, सो मुझे ऐसा लगता है कि द वेरी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ओके ड्यूरिंग मैनेजिंग अ टीम ओके विच आई रियली फेल्ट ऑल्सो, कि एक तो टीम पे बिलीव होना चाहिए। वी हैव टू ट्रस्ट आवर टीम, ओके, दैट इज दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ कि बीइंग अ लीडर, आपका काम यहाँ पे केवल टीम को इनेबल करना होना चाहिए। आपको इंश्योर करना है कि जो भी मेरे टीम के ब्लॉकर्स हैं वो कैसे हटा सकूँ मैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट। अगर आपने अपनी टीम को इनेबल कर दिया ना, तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए। आपको दादागिरी, आपको जोक्स, चमचागिरी, इस तरह के लोग नहीं चाहिए। आपको ये चाहिए कि बस आप अपनी टीम को कैसे इनेबल कर सको। तीसरी चीज़ जो मुझे लगती है ना, कि आजकल सर का कल्चर बहुत है। मैं भी मेरे सीनियर्स को कभी कभार सर बोल देता हूँ, बट मुझे लगता है कि वो सर का कल्चर हटना चाहिए। क्योंकि जब सर का कल्चर हटेगा ना, तो जो डिबेट्स है वो हेल्दी डिबेट्स हो पाएंगी। क्योंकि मैंने देखा है कि वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ सर थिंग, बॉस थिंग, वो डिबेट्स नहीं हो पाती, और वो जो मैनेजर कहता है उसकी बात मान लेते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको अपने प्रोजेक्ट को ग्रो करना है, प्रोडक्ट को ग्रो करना है, तो हेल्दी डिबेट्स होना बहुत ज़्यादा जरूरी है विद इन द टीम्स। तो अगर मेरी कोई बात गलत भी लग रही है, तो मेरा जो टीम मेंबर है वो बोलना चाहिए मुझे कि सर ये गलत बात है, एंड मतलब आकाश दिस इज नॉट ओके एंड वी शुड ट्राई दिस। तो ओपन टू फीडबैक भी होना चाहिए। और मेरी एक फिलॉसफी है कि लोग है ना फीडबैक काफ़ी लेट देते हैं लोगों को। मेरे को ऐसा लगता है कि फीडबैक काफ़ी इंस्टेंट होना चाहिए। अगर आपके पास कोई फीडबैक अपनी टीम के लिए, आप इंस्टेंटली बताओ अपनी टीम को फीडबैक, और ट्रांसपेरेंट रहो, ब्रूटली ऑनेस्ट रहो टीम के साथ में। कोई भी चीज़ है तो आप उनको ऑनेस्टली बताओ कि ये चीज़ चल रही है, ये चैलेंजेस चल रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। टीम से आप जितना हाइड करोगे, जितना आप छुपाओगे, उतना टीम के अंदर डिस्ट्रस्ट डेवलप होगा। तो ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग while managing a team. Akash, is there any, message which you would like to give to young professionals out there? So people who are just starting their jobs, who are early in their career, Yes. maybe I would say, that age group of 20 to 30 kind of a age group. Is there any message for them? Yes, definitely. Abhinav, the very first thing which I want to tell the entire audience is कि डोंट लूज़ दी होप। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है मार्केट के अंदर। पॉजिटिव रहो, चीज़ों को लेके लगे रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। डेफिनेटली समथिंग विल फॉल इन प्लेस। मैनिफेस्ट करते रहो। और ओनरशिप एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो उसको विदाउट मन मत करो, पूरे अपने मन के साथ में करो, पूरी ओनरशिप के साथ में करो। और हमेशा एक चीज़ याद रखो कि नौकरी में बस कभी नौकरी नहीं करनी। हमेशा उसको अपने धंधे की तरह, अपने बिजनेस की तरह करना है। और ये इंश्योर करना है कि अगर किसी ने मेरे को एक्स बोला है तो मैं उसको एक्स प्लस एक्स करके दूँ, एक्स स्क्वायर करके दूँ। तो ये दिस इज द मैसेज आई वांट टू गिव द ऑडियंस। डोंट लूज होप, बस लगे रहो। Super great. Thank you very much, Akash, for your time today. And thanks a lot for sharing your thoughts so honestly and so brutally. I think I definitely learned a lot from this session. I have known him since a long time. There were few things which I also did not know, but I think I hope that you found it useful and you will learn something from it. Thank you very much, Akash, for your time. Thanks Abhinav, thanks for inviting me. Thank you. In terms of career, what if you like
10th class also you have phones with yourselves, which has a good now internet is a kind of free only, so you can explore like what are the options.